Radhe Radhe, welcome back to my YouTube channel Trying to be Arjun of Krishna. This is Apeksha Singh, welcomes you here. Today we are having our first class of economics. Before I proceed further, let me tell you the basics. So we are going to have our two separate classes for the economics. One is for basic, completely basic to clear your fundamentals here. And the second one is for the advanced level, which is mainly for the economic purpose competitive exam or economic optional. This is for the and a basic in order to clear your base who are just a beginner for the 11th class or the 12th class. So, in case, first of all, this is our basic economics class, okay? And we are having a separate advanced microeconomics class for these things. We are having a first class of microeconomics today. This is the first part. Let me tell you the syllabus of our economy. The first, let me tell you the first topic of our economics. Now, मैंने एक टर्म होता है इकोनॉमिक्स, एक टर्म होता है इकोनॉमी. दोनों में क्या डिफरेंस है? इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी, इसमें क्या डिफरेंस है? ये इंट्रोडक्शन क्लास है एंड इवन दिस इज द फर्स्ट चैप्टर. ठीक है, बिल्कुल बेसिक है. क्या डिफरेंस होता है इकोनॉमी में एंड इकोनॉमिक्स? व्हाट इज इकोनॉमी वर्सेस इकोनॉमिक्स? ठीक है, सी एंड एवरीथिंग, व्हाटएवर वी डू, वी स्टडी एवरीथिंग फॉर अ पर्पस. हर चीज का एक रीजन होता है. And every subject has its own language, its own terms. Like mathematics, it talks about the algebra. Accounts talks about the profit and loss. So economics is no different here. Economics also talks about the demand, supply. What are these terms, right? So we are going to come across to these terms, but I'm just making you aware of this. ये सारे terms पढ़ेंगे. So slowly we are going to talk about the theories, the terms, and the numerical with certain examples. I make you, and of course one cannot become the economics overnight. It will going to take you some time to think like an economics, to understand like an economics. It will going to take you some time, but surely you will just do this. Have a trust on me. So basically, okay. Now let me explain what is, first of all, explain you what is economy. Then I'll come to what is economics. Economy, see. Every day we see so many activities happening in around our daily life. हम हर दिन देखते हैं बहुत सारी activities होती हैं. There are so many institutions, shops हैं, हर कोई कुछ ना कुछ daily activities, some transaction, something are performing. So if you see railways, you see shops, you know, so many metro stations, everything. You see so many things here. किसी की shop है, किसी का showroom है, you know, malls हैं. So what are these things? ये सारे institution, organization क्या हैं? So all these institutions and organizations are collectively an economy. क्यों economy है? Because ये सारे units जो है, it enables the peoples to earn an income. सबसे important term क्या बोला मैंने? पैसा कमाने का जरिया देते हैं and to earn an income. दूसरी चीज, पहला क्या है? First I said income. ठीक? Income. See, you will connect these things. Economy. क्योंकि ये सारी चीजें, whatever you do, right? Because it provides the people to earn an income, and at the same time you can to produce the goods and services which the people requires. क्या है? Produce goods and to produce the goods which the people require for use. ठीक है? So economy exactly क्या कर रहा है? Economy, it is a system which provides the people the means to living. इस income से आप क्या कर पा रहे हो? अपना जीने का जरिया, माध्यम पूरा कर पा रहे हो. Whatever needs you require, जो भी goods and services आपको चाहिए, इस पैसे से, इस income से, you can fulfill your needs, you can fulfill your desires, right? और नहीं है तो क्या हो रहा है? At the same time, economy क्या कर रही है? वो goods and services को produce कर रही है. That's to order to satisfy the wants of the people. So can I say, see, if you go into the market, अगर आप जाते हो, so you buy something, right? Or if you go anywhere, so what are they doing? You give something to them so that you get the goods and services to satisfy your needs, and he gets the money because he got the income in order to satisfy his needs. So you understand, it is a system. ये एक system की तरह work कर रहा है. आपको जो जरूरत है, so it is a system which provides the people the means to work. काम करने का एक जरिया देती है, जीने का एक जरिया, ये एक पूरा सिस्टम है. ठीक है? So it is a system which provides the people the means to work and to earn a living. वर्क करोगे तभी तो इनकम मिलेगी, इनकम मिलेगी तभी तो आप लिविंग करोगे, तभी तो आप माध्यम उसी से जी पाओगे. That is what we say economy. It is a system which provides the people the means to living and to earn an income. So in an economy, if you see, we have so many sources of production. We have industry, we have agriculture, transport,
कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ये सारी सर्विसेज क्या कर रही है, कहीं ना कहीं क्या ये पूरा एक सिस्टम ही तो बना रही है. दिस इज व्हाट दे आर डूइंग, दे आर अर्निंग एन इनकम. अगर आप देखो क्या वो कंडीशन फुलफिल हो रही है, कुछ सर्विसेज दे रही है, कुछ गुड्स दे रही है, कुछ इनकम प्रोवाइड दे रही है. समहाउ द नीड्स आर हो रहा है ना, somehow the things are being fulfilled here. So basically, so we are done with an economy. So economy, it is a system which provides living to the people and to earn an income or to produce goods and services to satisfy the wants of the people. अब इसके बाद next term है which is the vital process. ठीक है, अभी vital क्या होता है? What is vital? Vital which means important, जरूरी. अब मैंने economy के आगे लिखा है vital process. Think of your own brain. क्या वाइटल प्रोसेस हो सकती है एक इकोनॉमी के लिए? वाइटल मतलब क्या इंपॉर्टेंट, क्या वो प्रोसेस हो सकती है एक इकोनॉमी के लिए कि वो प्रॉपरली फंक्शन में काम कर सके? व्हाट डू यू थिंक? डोंट यू सी आई एम राइटिंग हियर, डोंट यू थिंक वाइटल प्रोसेस मेरी सबसे पहले क्या होगी? प्रोडक्शन. देखो ना, गुड्स एंड सर्विसेज मेरी वांट सबसे पहले सेटिस्फाई कब होंगी? जब उस गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा. कॉमन सेंस. लाइक अगर वो चीज प्रोड्यूस की जाएंगी तभी तो मेरी इकोनॉमी, तभी तो मुझे गुड्स एंड सर्विसेज मिलेंगे. प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन के बाद उसे कोई कंजप्शन करने वाला होगा, तभी तो वो प्रोसेस आगे बढ़ेगी. फर्स्ट इज प्रोडक्शन, सेकंड इज कंजप्शन एंड थर्ड इज इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं या फिर हम इसे और कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं. अभी एक्सप्लेन करती हूँ क्यों लिखा है मैंने कैपिटल फॉर्मेशन. सो बेसिकली फर्स्ट है प्रोडक्शन. प्रोडक्शन इज वेरी क्लियर, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी चाहिए वो है. ओके, सो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का होगा तभी तो हम वी कैन सेटिस्फाई आवर वांट. उसके बाद कंजप्शन कंज्यूमर करेंगे. अब यूज योर ओन ब्रेन नाउ हियर. प्रोडक्शन कौन करेगा? हु विल डू द फर्म्स. फर्म से मतलब क्या है यहाँ पे? जो प्रोडक्शन यूनिट्स है बेसिकली, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर. करेक्ट, यही तो प्रोडक्शन करेगा. करेक्ट. और सर्विसेज भी हम डाल सकते हैं, लाइक हॉस्पिटल्स या बैंकिंग सेक्टर सर्विसेज देती है. सब बैंकिंग सेक्टर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर सर्विसेज देंगी. तो ये प्रोडक्शन यूनिट्स हो गई. रिमेंबर दिस थिंग. मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि आने वाले टर्म्स में सारी छोटी माइनर चीजें सब काउंट होंगी. एंड जस्ट बी अवेयर ऑफ दोस टर्म्स. आई एम इंट्रोड्यूसिंग दीज टर्म्स कि आप उनसे अवेयर हो सको, क्योंकि मैं यूज करूंगी बार बार. नेक्स्ट वी हैव कंजप्शन. कंजप्शन कौन करेगा? कंज्यूमर्स. सिंपल, कंज्यूमर्स करेंगे ना. कंजप्शन हम लोग. बेसिकली एक टर्म यहाँ पे यूज किया जाएगा, हाउस होल्ड. ठीक है, एक टर्म कंज्यूमर नहीं बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? हाउस होल्ड. मैं क्यों इकोनॉमिक टर्म? मैंने बोला ना कि एवरी सब्जेक्ट हैज इट्स ओन टर्म्स एंड टर्म्स. आपको अवेयर होना पड़ेगा एंड जस्ट बी अवेयर ऑफ दोस टर्म्स. कंजप्शन कौन करेगा? कंज्यूमर्स करेंगे, बेसिकली हाउस होल्ड करेंगे. इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन बता रही हूँ मैं. इन्वेस्टमेंट को मैं कैपिटल फॉर्मेशन के नाम से भी जानती हूँ. क्यों? देखो, तीसरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस क्या है, एक्टिविटी क्या है? इन्वेस्टमेंट है. पैसा लगाओगे तभी तो चीजें आगे बढ़ेंगी. कैपिटल क्या होता है? कैपिटल का मतलब होता है दैट मनी, द ओनर ऑफ दैट बिजनेस, he invested that. Capital is basically that amount, that money which is invested in the business. ठीक है, तो कैपिटल मतलब मनी, फॉर्मेशन तो पैसा बनना. दैट इज व्हाई दिस नेम हैज बीन केप्ट एज अ कैपिटल फॉर्मेशन. इन्वेस्टमेंट का नाम या इसे कैपिटल फॉर्मेशन के नाम से बोलते हैं. सो बेसिकली देयर आर अदर एक्टिविटीज आल्सो, और भी बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, बट वी कंसिडर दीज एज अ वाइटल. वाइटल मतलब इंपॉर्टेंट. हम इन्हीं तीन को सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज बोलते हैं. सो बेसिकली दीज आर 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज व्हिच आर essentials, which are so basic and for any economy to working. किसी भी इकोनॉमी को प्रोसेस में चलने के लिए ये 3 एक्टिविटीज करना बहुत जरूरी है. इंडिया से लेके किसी भी आप इकोनॉमी में चले जाइए, ये 3 एक्टिविटीज परफॉर्म करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज इकोनॉमी विल स्टॉप देयर. सो बेसिकली नाउ, so we have done with the vital process of an economy: production, consumption, investments. ठीक है, I'll come to this economics topic separately when I'm going to explain you regarding this economic problem. तो मैं explain करूंगी economics क्या है. ठीक है, उससे पहले why we are studying question comes ना, दिमाग में आता है क्यों हम economy पढ़ रहे हैं. उससे पहले मैं 2-3 terms introduce करना चाहूंगी. First is resources. This is resources, this is wants. ठीक है, resources मतलब क्या होता है यहाँ पे? is means, माध्यम. मतलब मेरे पास क्या क्या resources, बोलते हैं ना कि पढ़ाई कैसे करेंगे, पढ़ाई कैसे करेंगे, what are the resources, क्या क्या पढ़ने के लिए है आपके पास, राइट? माध्यम क्या है मेरे पास, what is my means. ठीक है, wants तो सबको पता ही,
ठीक है, टू सेटिस्फाई योर वांट्स. फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट टू स्टडी, इफ यू वांट टू मीट योर हंगर, इफ यू then you will eat a food. Food is your resource, hunger is your want. तो basically satisfaction हुआ. तो यहाँ पे तो याद रखना, remember this thing. Now I am linking these things. मैं क्या कर रही हूँ, resources को मैं for example मैं बोल रही हूँ resources for example money. ठीक है, हमारे पास सिर्फ 100 रुपए है, लिमिटेड है, पैसा लिमिटेड है. तो बेसिकली रिसोर्सेज हमारे पास हमेशा लिमिटेड होते हैं. अभी मैं किसी भी चीज को, क्योंकि इकोनॉमी इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि इट इज अबाउट अ होल नेशन. ठीक है, बहुत एक नेशन का बात हो जाती है, तो इसलिए मैं हमें पहले उसको सो कॉम्प्लेक्स में एक इंडिविजुअल एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी. समझना है, ऐसे इंडिविजुअल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी और फिर आपको उस इंडिविजुअल एग्जांपल को टू द नेशन के उसमें कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करना है, तब आपको इकोनॉमी समझ आएगी. ठीक है, जैसे कि अब रिसोर्सेज मैंने बताया, रिसोर्सेज मतलब फॉर एग्जांपल मनी. 100 रुपए हमारे पास, मेरे पास सिर्फ 100 रुपए है, पैसा कम है ना, लेकिन मेरे को भूख बहुत ज्यादा लगी है और मुझे बहुत सारी चीजें खरीदनी. आई हैव सो मेनी वांट्स. मुझे फॉर एग्जांपल आई वांट टू बाय माय ड्रेस, आई वांट टू बाय मी फोन, आई वांट टू, बट आई डोंट हैव मनी. मेरी वांट्स तो बहुत सारी हैं, मतलब वांट्स मेरे पास अनलिमिटेड हैं, बट the means to satisfy these wants, the resources is very limited to satisfy my wants. So ये चीज याद रख लेनी है कि resources हमेशा limited होते हैं, wants हमारे पास अनलिमिटेड होती हैं. Keep this thing in your brain और इसको याद कर लीजिए अच्छे से. Resources limited है, wants unlimited है, क्योंकि ये चीज बार बार रिपीट होगी और ये पूरा कॉन्सेप्ट, इकोनॉमी का पूरा कॉन्सेप्ट इसी चीज के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि दिस इज ट्रू. हर हमारी आज भी इकोनॉमी, इफ यू सी, अब इसको कैसे कॉन्टेक्स्ट में नेशन में अप्लाई करेंगे आप. फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन ऑफ गुड्स करना है, कोई वेजिटेबल्स वी हैव टू ग्रो. अब उसके लिए जो रिसोर्सेज है वो कम है. ठीक है, रिसोर्सेज कम है, बट वी हैव टू प्रोड्यूस अ लॉट. तो बेसिक ये कॉन्टेक्स्ट जो है लिमिटेड रिसोर्सेज का, अनलिमिटेड वांट्स का हर जगह एप्लीकेबल होगा, हर जगह पे. दिस इज हाउ वी कनेक्ट अ नेशन. ठीक है, रिसोर्सेज कम है, माध्यम बहुत कम है बेसिकली हमारे पास. तो एक्चुअली अगर, या फिर क्या मैं ऐसे लिमिटेड को, क्या मैं ऐसे ये बोल सकती हूँ कि मेरे पास रिसोर्सेज स्केयर है, कम है, बोल सकती हूँ? कैन आई से दैट आई हैव अ स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज? स्कैरसिटी का मतलब बेसिकली होता है कमी होना, किसी चीज की कमी होना. ठीक है, तो क्या मैं बोल सकती हूँ वी हैव रिसोर्सेज आर वेरी स्कैर्स हियर. सो द पर्पस ऑफ स्टडिंग द होल इकोनॉमी इज सिंप्लीफाइड इनटू अ सिंगल वर्ड, दैट इज अ स्कैरसिटी. कि बेसिकली स्कैरसिटी का कमी जो है, तो इस जब रिसोर्सेज इतने कम है, माध्यम इतने कम है, ऐसी सिचुएशन में मैं कैसे डिसाइड करूंगी, ऐसे सिचुएशन में हाउ विल आई ट्राई टू सेटिस्फाई दीज अनलिमिटेड वांट्स आउट ऑफ दीज लिमिटेड रिसोर्सेज. इस कम लिमिटेड रिसोर्सेज से मैं कैसे इतनी अनलिमिटेड वांट्स को मैं सेटिस्फाई करूंगी. सो इकोनॉमी इज ऑल अबाउट इसी के आगे पीछे क्वेश्चन की कैसे मैं करूंगी, हाउ द थिंग्स विल टेक प्लेस, हाउ द डिसीजन विल टेक प्लेस, सारी इकोनॉमी इसी के अराउंड रिवॉल्व करती है. सो स्कैरसिटी एग्जैक्टली क्या है? कमी. सो आई विल सिंप्लीफाई टू अ सिंगल वर्ड. स्कैरसिटी इज रेफर्स टू द लिमिटेशन ऑफ सप्लाई. अब स्कैरसिटी का भी सेपरेट टॉपिक है, एक्सप्लेन करती हूँ इसे मैं. सो ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट इज द स्कैरसिटी. थोड़ा टॉपिक्स है, इट हैज सर्टेन सब टॉपिक्स, ध्यान से सुनना. स्कैरसिटी पहले तो मैंने बताया लिमिटेशन, किसी चीज की कमी होना, जिसे बोलते हैं किसी चीज की कमी हो जाना. सो बेसिकली स्कैरसिटी क्या है? फर्स्ट आई एम गिविंग यू अ डेफिनेशन. स्कैरसिटी, बेसिक ध्यान से सुनना इसको. स्कैरसिटी इट रेफर्स टू द लिमिटेशन ऑफ सप्लाई, मतलब सप्लाई कम है. ठीक है, लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू द डिमांड फॉर अ कमोडिटी. जिस भी कमोडिटी है, जिस भी चीज की डिमांड है, लोग चाहते हैं, उसकी सप्लाई है ही नहीं. सिंपल, बहुत सिंपल डेफिनेशन है, व्हिच मींस limitation of supply in relation to the demand for a commodity. Why? क्यों है ऐसा? Again, the same reason, we have resources are very limited, right? Resources are very limited and wants are unlimited. So it is very difficult to satisfy these limited resources, satisfy these unlimited wants out of these limited resources. बहुत मुश्किल है satisfy करना. So it's as because resources are very scarce, society does not have the enough resources to produce those goods and services and satisfy the wants of the people. So ऐसी सिचुएशन में जब हमारे पास wants unlimited है, resources limited है, तो हमें क्या करना चाहिए? आप, I am giving you an example here. आप क्या करोगे? फॉर एग्जाम्पल, what you will, बहुत छोटा सा एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ. There are 4 people, 4 लोग हैं आपके पास और खाने को सिर्फ 2 रोटी है.
हाउ विल यू डिस्ट्रीब्यूट इट? कैसे करोगे आप उस दो रोटी को? You will divide it, right? You will divide it. What are you doing? You are trying to optimize it. आप उस चीज को, उस limited resources को इस तरीके से बांट रहे हो ताकि बहुत ज्यादा से ज्यादा satisfy हो सके. So what are you doing? You are economizing your resources. आप क्या कर रहे हो? आप economize कर रहे हो अपने resources को. So basically scarcity में का solution क्या है? Imagine ना कि basically अगर simply पूछे लिमिटेड रिसोर्सेज का अनलिमिटेड वन, इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है सिंपली इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज. ढंग से यूज करो रिसोर्सेज को. सिंपली है इकोनोमाइजिंग, व्हिच मींस मेकिंग द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. ठीक है, सो वी नीड टू इकोनोमाइज आर, वी नीड टू यूटिलाइज देम इन अ मोस्ट एफिशिएंट मैनर so that we can satisfy the unlimited wants of the people. Understand? Now, अब since scarcity जो है यूनिवर्सल है, आई टोल्ड यू कि ये जो प्रॉब्लम है ये तो हर इकोनॉमी में मिलेगी आपको. इट अप्लाइज टू एवरी इकोनॉमी, एवरी यूनिवर्सिटी, एवरी ऑर्गेनाइजेशन, हर जगह यूनिवर्सल है. स्कैरसिटी इज यूनिवर्सल, इट अप्लाइज टू एवरीवेयर. सो थर्ड थिंग इज, सो लेकिन अब सोचो, नाउ द प्रॉब्लम इज नॉट ओनली कि ये स्कैर्स है, प्रॉब्लम तो ये नहीं है कि रिसोर्सेज कम है. एक और एग्जांपल दे रही हूँ. फॉर एग्जांपल पेट्रोल. ठीक है, पेट्रोल जो है, पेट्रोल की सिर्फ कमी नहीं है. इट इज नॉट ओनली स्कैर्स, इट्स नॉट ओनली यूज्ड इन आवर व्हीकल्स, इट इज आल्सो यूज्ड इन आवर एयरप्लेन्स, एयरप्लेन इंजन्स, इट इज आल्सो यूज्ड इन आवर जनरेटर्स. बहुत सारे इसके ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हैं. ये सिर्फ व्हीकल्स में यूज नहीं होता है. ऑल्टरनेटिव मतलब बहुत सारे, ठीक है, अलग अलग बहुत सारे इसके यूजेस भी हैं. बहुत सारी चीजों में यूज किया जाता है. So imagine resources are not only scarce, it also has the alternative uses. अब एक तो कमी थी कि डिसाइड करना था कि पेट्रोल को एक तो कमी है, अब ये भी डिसाइड करना है कि इन सारी चीजों में से मैं किस में पेट्रोल यूज करूं क्योंकि मेरे पास तो इतना सही है. तो ऐसी सिचुएशन में व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर, मैं ऐसे ऑल्टरनेटिव यूजेस में मैं देखूंगी कि मेरा यू हैव टू प्रायोरिटाइज. आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यूज कौन सा है जहां पे मैं अपने रिसोर्सेज को लगाऊं. सो अपने पेट्रोल को मैं कौन सी जगह पे यूज करूं. यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर वांट्स. आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा. तो बेसिकली राइट, सो अब हमें ये भी डिसाइड करना है एट द सेम टाइम कि रिसोर्सेज तो एक तो कम है और ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हैं कि मैं पेट्रोल को किस किस पे यूज करूं यार. सो बेसिकली ऑल्टरनेटिव यूजेस, इट मींस दैट व्हिच मींस रिसोर्सेज कैन बी पुट टू मोर देन वन यूज. एक से ज्यादा जगह पे मैं रिसोर्सेज को यूज कर सकती हूँ, मैं लगा सकती हूँ. ठीक है, सो लिसन दिस थिंग, ऑल्टरनेटिव यूज, अंडरस्टैंड. सो दिस इज एग्जांपल ऑफ. सो अब यूज ओन, अब दिमाग लगाओ थोड़ा सा अपना. यहाँ पे मैंने बोला कि आई हैव टू डिसाइड कि कौन सी चॉइसेस में से मैं इसमें से किस में से पेट्रोल, कौन सी यूज में मैं यूटिलाइज, कौन सी ऑल्टरनेटिव यूजेस में मैं पेट्रोल को यूज करूं. करेक्ट. सो व्हेन यू हैव टू मेक अ चॉइस आउट ऑफ दीस वेरियस ऑल्टरनेटिव यूजेस की इसमें कौन सा ऑल्टरनेटिव यूज को चूज करूं. राइट, सो दिस गिव्स यू द प्रॉब्लम ऑफ choice. The problem of choice, where you have to make a decision out of these various alternative uses. आपको decision making करनी पड़ी है कि so if you understand this thing, ये scarcity के वजह से, alternative uses की वजह से एक important concept है, economic problem आती है जिसे मैं बोलती हूँ problem of choice. क्या बोलती हूँ मैं? Problem of choice. So basically scarcity, because of this alternative uses, it gives you the problem of choice. आपको चूज करना पड़ेगा. ठीक है, so when imagine when one alternative use will have to be selected, the other uses will have to be sacrificed. अगर आप किसी एक को चूज कर रहे हो, ऐसे सेड ना, पेट्रोल अगर आप लगा रहे हो उसको व्हीकल्स में, तो आपको you cannot use it in a generator, करेक्ट. आपको उसका यूज सैक्रिफाइस करना पड़ेगा. सो आपको now you are getting the problem of choice कि मैं किस में यूटिलाइज करूं. तो दिस गिव यू द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. सो बेसिकली इकोनॉमिक, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम. तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम बेसिकली क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. चॉइस की प्रॉब्लम है टू सैटिस्फाई द अनलिमिटेड वांट्स. सो आउट ऑफ दीज क्या करना पड़ेगा? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है. किससे सैटिस्फाई कर, क्या सैटिस्फाई करना? टू सैटिस्फाई द अनलिमिटेड वांट्स out of these limited resources which have the alternative uses. So economic problem basically क्या है? Economic problem, see I said these are limited resources, unlimited wants and alternative uses. So basically economic problem is a problem of choice to satisfy the unlimited want out of these limited resources which have the alternative uses. Correct?
अभी मैं इसको थोड़ा सा डिटेलिंग में बताऊंगी. यू अंडरस्टैंड दिस थिंग. अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है द सेम थिंग, बट देयर आर सर्टेन पॉइंट्स व्हिच नीड टू बी एडेड हियर. थोड़ा छोटा सा ऐड करी हूँ. आई एक्सप्लेन दिस थिंग. ठीक है, पॉइंट्स छोटे छोटे से मैं लिखूंगी. आई एम नॉट, ठीक है, बाकी मैं एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ. लिमिटेड रिसोर्सेज, एज आई सेड, लिमिटेड मतलब स्कैसिटी ऑफ रिसोर्सेज का होना. रिसोर्सेज आर वेरी लिमिटेड. रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं. टू satisfy the unlimited wants of the people, we know as resources are very limited. To satisfy the unlimited wants, so we cannot satisfy the wants of the people, right? नहीं satisfy नहीं कर सकते यहाँ पे. So this is a basic reason for every, this is a basic economic problem in every economy. Scarcity universal है, बताया. Limited resources है, scarcity है, universal है, बताया ना. This is scarcity universal, applies to every individual, every organization. Imagine if the resources would not have been scarce, there would not have been any no economic problem. सोचो ना, अगर economic resources, अगर resources limited होते ही नहीं, तो इतनी प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज ही नहीं करती. मतलब इमेजिन करो कि सबकी वांट सेटिस्फाई हो रही है, फिर तो देयर वुड बी नो इकोनॉमिक प्रॉब्लम. चीजें होती ही नहीं, पीपल वुड नॉट हैव टू डिसाइड. इकोनॉमाइज करना ही नहीं पड़ रहा रिसोर्सेज को. रिसोर्सेज इतने सारे होते तो हर कोई अपनी वांट ही सेटिस्फाई करता, कोई अमीर गरीब होता ही नहीं. करेक्ट. So there is a limited resources. Next thing is unlimited wants. ठीक है. Next जो है is unlimited wants. So basically unlimited मतलब क्या होता है? Never ending. जो चीज कभी खत्म नहीं होगी. ठीक है. So unlimited मतलब क्या हुआ यहाँ पे? I'm explaining this thing, not writing this down here. Unlimited is never ending, which means their wants can never be fully satisfied. आप कभी उसको satisfy नहीं कर सकते. ठीक है. So basically, as soon as we अगर आप एक want satisfy करोगे, मतलब अपनी just keep yourself, human wants कैसी होती है? Unlimited होती है. अगर आपको एक, for example, if you get a phone, नया iPhone आ गया मार्केट में, you want a better one, आपको और चाहिए, तो आपकी want क्या पे डिजायर रहती है, जो कभी खत्म होंगी ही नहीं. They are unlimited, they are never ending. So and as soon as you satisfy one want, many new wants emerges up, एक और want आ जाएगी. So they are not only unlimited, they are multiple in nature, only they are recurring in nature also. बार बार अकर भी करती रहती है. तो ऐसी सिचुएशन में क्या जरूरी है? ऐसी सिचुएशन में जरूरी है कि इंडिया डिफर्स इन प्रायोरिटी. इनको वॉन्ट्स को, क्योंकि अब सारी वॉन्ट्स तो आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते हो, तो आप क्या करोगे? आप इन वॉन्ट्स को प्रायोरिटीज में डालोगे. These unlimited wants are differs in our priorities. Priorities से मतलब है कि since we know that all the wants are not of equal intensity, equal importance. सारी want, for example, if you want, you know, अगर आपको के सामने फूड है, खाना है, फूड है, पानी है, बुक है, या you know to go to play some dance, to play a cricket or do something, आपके लिए सबसे पहले ये डिसाइड करना होगा मेरी प्रायोरिटी वांट क्या है. सबसे पहले मुझे भूख मिटानी है. आई नीड अ फूड. ठीक है. So actually they are differs in our priorities. हमको priorities, so all the wants are not of equal intensities, right? So they are differs in our priorities as per your preferences. Preferences के हिसाब से आपको priorities में डालना पड़ता है. ठीक है. Alternative use, same explanation मैंने अभी आपको डिटेलिंग में दिया. Example of पेट्रोल. पेट्रोल which means alternative uses मतलब क्या है? Resources we can be put to more than one use. एक से ज्यादा choices हैं. अब इसमें से कौन सा मैं डिसीजन मेकिंग करूँ? So अगर आप समझ पा रहे हो इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑल एंड ऑल क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑल एंड ऑल क्या है? इट इज एक्चुअली टू टेक अ डिसीजन मेकिंग टू सैटिस्फाई द अनलिमिटेड वांट्स एंड इन द प्रेजेंस ऑफ स्कैरसिटी. एक्चुअली तो यही है. ठीक है. सो वी आर डन विद द इकोनॉमिक प्रॉब्लम हियर. देन ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन. आई टोल्ड यू एक्सप्लेन दिस इकोनॉमिक्स. अब इसी में क्योंकि मैंने इतना सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर दिया, इकोनॉमिक प्रॉब्लम बता दिया, स्कैरसिटी बता दी, टर्म से अवेयर करवा दिया, लिमिटेड वांट्स, अनलिमिटेड वांट्स, यू नो इकोनॉमी समझा दिया, प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज. अब मैं आपको बताऊंगी कि इकोनॉमिक्स क्या होता है. ठीक है. लिसन दिस थिंग, आई एम गिविंग यू अ स्टेटमेंट, ध्यान से सुनो. आई सेड इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस. लिसन दिस अगेन. इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस which studies the way society chooses its limited resources to produce the goods and services and to distribute them among different groups of people. ठीक है. अब मैं इसको पार्ट में एक्सप्लेन करती हूँ, सेगमेंट में. I said economics is a social science. कहा मैंने इकोनॉमिक एक सोशल साइंस है. I will tell you why I'll tell you social science. Which studies a way, जो ये पढ़ती है, जो ये समझती है कि एक सोसाइटी विद सोसाइटी चूजेस इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज. कोई भी समाज, सोसाइटी से मतलब कोई भी इकोनॉमी, कोई भी नेशन, कोई भी, ठीक है, कैसे डिसाइड करती है, किस तरीके से एक सोसाइटी ये चूज करती है. लिमिटेड रिसोर्सेज कम है ना उसके पास,
उसको यूज करके कि वो कैसे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करेगी. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड कि मेरे पास बनाने के लिए, फॉर एग्जांपल, आई हैव ओनली I have just 2-3. इफ आई वुड एग्जाम्पल के बेसिस पे अगर मैं कहूँ, मेरे पास 3-4 प्लांट्स हैं. अब उससे मुझे आई हैव टू तो उससे मुझे बहुत सारे लाइक अराउंड 100 लोगों की नीड्स को फुलफिल करना है. तो मैं कैसे करूंगी? ठीक है. सो आई हैव टू मेक अ डिसीजन. लिमिटेड रिसोर्सेज से मुझे पे इतने सारे लोगों की वांट्स को सेटिस्फाई कैसे करूंगी? सो आई हैव टू टेक अ डिसीजन फॉर दैट. यस. So basically, I will choose कि मैं कैसे out of these limited resources मैं choose करूंगी to produce the goods and services. कैसे, and at the same time बनाने के बाद how will I distribute and to distribute them among different groups of people. Start कर दिया? Yes, and at the same time I will also decide कि how will I distribute these goods and services to among different groups of people. कैसे मैं उन goods को लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करूंगी. तो इकोनॉमिक्स जो है वो यही है. इकोनॉमिक्स और सोशल साइंस, मैंने भी बताया था ना सोशल साइंस क्या है. टर्म्स को वापस करते हैं. सोशल साइंस, साइंस क्या है? इट्स अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज. ठीक है, जिसका एक एग्जैक्ट बॉडी ऑफ नॉलेज प्रॉपर होती है. इन द सेम वे इकोनॉमिक्स भी तो ऐसा ही है. वी ऑल्सो हैव सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज नॉलेज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर के बारे में कि अबाउट इकोनॉमिक एक्शंस उनके कैसे होते हैं, इकोनॉमिक एक्शंस ऑफ ह्यूमंस कैसे रहते हैं, उस चीज के बारे में हम इसमें स्टडी करते हैं. सो दैट्स व्हाई इट इज अ साइंस. अब ये क्वेश्चन आता है कि सोशल see it is not exact science like a physics and chemistry जिसमें exactly statement of facts होते हैं. It's not like that because we are studying the behavior of humans ना. So that's why it is a social. इसीलिए social science डाला है कि जो चूज करती है एक टर्म को मैंने स्पेसिफाई किया कि इट इज अ सोशल साइंस. It studies the way society chooses its limited resources to produce the goods and services and to distribute them among different groups of people. This is our economics. Understand? ये एक पूरा economics है. Next, अब economics जो है दो पार्ट, क्योंकि it's a youth subjects. तो for simplify करने के लिए हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. एक होता है माइक्रो और एक होता है मैक्रो. माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स. हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? माइक्रो इकोनॉमिक्स. ठीक है. क्यों पढ़ना जरूरी है माइक्रो? बिकॉज सिंस माइक्रो मतलब स्मॉल, टर्म से क्लियर होता है छोटा, स्मॉल होना. मैक्रो जो मतलब होता है लार्ज. ठीक है. तो बड़ी चीज पे जाने से पहले आप छोटा तो समझोगे ना. यू नीड टू अंडरस्टैंड द बेस, राइट? So basically माइक्रो जो है, it helps you to understand the basic, the fundamentals of economics. क्योंकि जब तक आपको फंडामेंटल्स नहीं पता होंगे, आप मैक्रो जो इकोनॉमी जो आपको एक्चुअली समझनी है, you will not able to understand. So basically it helps in supplying the foundation of an economy, how the macroeconomics, how the economy will function. ठीक है, एक इकोनॉमी फंक्शन कैसे करती है, उसके लिए वो एक बेस आपको सप्लाई करती है. So explain the things in more detail. Micro. The word micro. Adam Smith, you know this thing. Adam Smith, he's a founder. He's a founder in the field of microeconomics. सबने सुना होगा नाम. तो word micro जो है, it is derived from the Greek word micro. ये जो शब्द है, ये micro कहाँ से आया? एक Greek word है micro. ठीक है, यहां से आया, जिसका मतलब होता है small. तो basically, okay. So word micro derived from the Greek word micro, जिसका मतलब होता है small. मैक्रो भी एक ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मतलब है लार्ज. ठीक है. सो माइक्रो जो है, ठीक है, एक टर्म मैं और लिख रही हूँ यहाँ पे इस तरफ, दैट इज इंडिविजुअल. याद रखना है, ये इसका कीवर्ड है. ठीक है, माइक्रो का. मैक्रो का कीवर्ड है एग्रीगेट. Because I haven't got so much space, इसलिए मुझे थोड़ा congested होके लिखना पड़ रहा है. But I'm just dictating the word. Aggregate है ये. ठीक है. So micro and macro, when I say micro का कीवर्ड जो है वो individual है, macro का कीवर्ड है aggregate. Aggregate मतलब ग्रुप में. ठीक है. So micro मतलब as term से समझ आ रहा है small. As I said, macro मतलब large. Micro जो है, जब भी हम इंडिविजुअल का किसी एक के इकोनॉमिक एक्शन को, इकोनॉमिक बिहेवियर को समझते हैं, तब हम उसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में डालते हैं. एग्जाम्पल, जैसे कि इंडिविजुअल जो है उसका कंजप्शन क्या है. ठीक है, किसी एक इंडिविजुअल का कंजप्शन क्या है, या
किसी एक कमोडिटी की प्राइस क्या है? क्या है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी? एक कमोडिटी की प्राइस क्या है, इसके बारे में जब हम पढ़ते हैं, that's what we mention this thing. I don't have a space so I have to rub it. मैंने आपको बताया इसके लिए, ठीक है। तो इंडिविजुअल में क्या मतलब है कि जब हमें इंडिविजुअल कंजप्शन क्या होगा, इंडिविजुअल प्रोडक्शन क्या होगा, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी क्या है, वो माइक्रो किसी एक कमोडिटी, किसी एक चीज के बारे में जब हम पढ़ते हैं, सो तब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में डालते हैं, ठीक है। एज आई सेड, तो इसको मेजर करने के लिए इसके जो टूल्स हैं वो है डिमांड एंड सप्लाई। डोंट वरी अबाउट ये टर्म्स में कैसे इंट्रोड्यूस करें, डिमांड, सप्लाई, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। You will going to come understand this thing coming in the coming chapters. आने वाले चैप्टर्स में सारी चीजें, एक एक वर्ड, एक एक चीज में डिटेलिंग में बोलूंगी कि यहाँ पे डिमांड क्या है, यहाँ पे सप्लाई क्या है, क्या इसका मतलब, क्या मतलब है डिमांड क्या है, सप्लाई क्या, हर एक चीज को मैं डिटेल में बोलूंगी। डोंट नॉट गेट कंफ्यूज। माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और नाम होता है प्राइस थ्योरी। मोस्टली इसमें हम किसी भी कमोडिटी की जब हम प्राइस को निकालने की कोशिश करते हैं, माइक्रो में ऐसा ही करते हैं, प्राइस, इसलिए इसको एक और टर्म इट इज ऑल्सो नोन एज अ प्राइस थ्योरी, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है, इट इज एक्चुअली, इसमें हम लार्ज एग्रीगेट ग्रुप ऑफ बिहेवियर, एक्चुअली मैक्रो जो है, जो हम एक्चुअली इकोनॉमी की बात करते हैं ना, वो हम इसमें करते हैं, ठीक है। जो हम पॉवर्टी की बात करते हैं ना, कि पॉवर्टी कितना है, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है, इनकम लेवल क्या है, वो सब हम पता है इसमें पढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। कि एग्रीगेट की जब हम बात करते हैं, जब एग्रीगेट डिमांड, एक इंडिविजुअल की डिमांड हुई, ठीक है, एक इंडिविजुअल की डिमांड, लेकिन अगर मैं पूरी इकोनॉमी की डिमांड की बात करूं, व्हिच मींस एग्रीगेट डिमांड, वो मैं मैक्रो में बात करूंगी, ठीक है। आई विल टॉक अबाउट इट मैक्रो इन दिस केस। इसलिए इसका एक और नाम है, दैट इज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, उस नाम से इसे मैं जानती हूँ। सो नाउ आई एम गिविंग यू अ स्टेटमेंट हियर। Microeconomic is that part of economics theory which studies the behavior of individual units of the economy, and macro is that part of economics theory which studies the behavior of the aggregate of the economy as a whole, ठीक है। aggregate of a economy पढ़ती है, तब हम macro की बात करते हैं। इसके tools क्या हुए फिर? aggregate demand, aggregate supply, do not get confused, ये डी क्या बोल रही हूँ मैं, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, ये सारे टर्म्स हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, एंड तब कॉन्सेप्ट और ज्यादा अच्छे से क्लियर आपको हो जाएंगे, ठीक है। सो वी आर डन विद द माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स, देयर इज आल्सो अ डिफरेंस, व्हेन यू रीड द बुक आपको दिखेगा डिफरेंस क्या होता है माइक्रो एंड मैक्रो में, डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है। अब नाउ वी आर कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, ठीक है। अब टर्म से क्लियर हो रहा है वापस से कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है। सेंट्रल मतलब क्या है, मेन सेंट्रल प्रॉब्लम, सेंटर की मेन प्रॉब्लम क्या है। अब एक टर्म में इंट्रोड्यूस कर रही हूं इसमें, दैट इज, लेट मी राइट इट हियर, सेंट्रल प्रॉब्लम्स, मैं इसको यहां लिख देती हूँ, ठीक है। इसका जो मेन वर्ड है, आई एम राइटिंग हियर, दैट इज एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है। एक वर्ड लिखती हूँ, सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है ऑफ एन, इट्स अ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, एक इकोनॉमी की मेन प्रॉब्लम क्या है, सेंट्रल। अभी मैंने आपको बताया वापस से सेम चीज, आई टोल्ड यू रिसोर्सेज लिमिटेड है, वांट्स अनलिमिटेड है, तो तरीका, एलोकेट मतलब क्या होता है, बांटना, एलोकेट कर रहे हो ना, यू आर लोकेटिंग द क्लास, दैट्स हाउ वी डू दिस थिंग्स, कि आपको यू टेक एडमिशंस इन एनीथिंग, सो यू आर बीइंग एलोकेटेड द क्लासेस, आपको बोलते हैं आपको कौन सा कोर्स एलोकेट हुआ है, एलोकेट मतलब बांटना, दिया गया है आपको, दैट्स व्हाट इज। सो हम क्या कर रहे हैं, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कर रहे हैं, रिसोर्सेज का, क्योंकि लिमिटेड है ना, तो वो हम कर रहे हैं, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब क्वेश्चन आता है सेंट्रल प्रॉब्लम, एज आई सेड नाउ, सेंट्रल प्रॉब्लम, अब वापस से चीज आती है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, अनलिमिटेड बॉन्ड्स हैं, वी कैन नॉट सैटिस्फाई द अनलिमिटेड बॉन्ड्स, सो डोंट यू थिंक ऐसी सिचुएशन में एक इकोनॉमी, एक सोसाइटी, एक नेशन को ये डिसाइड करना चाहिए कि यार अगर सब कुछ कम है तो वी शुड डिसाइड कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हमें देखना चाहिए ना कि हम क्या प्रोड्यूस करें, कैसे प्रोड्यूस करें और किसके लिए प्रोड्यूस करें। सो वी हैव टू टेक अ डिसीजन फॉर दैट, हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम क्या प्रोड्यूस करें, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हूम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करें, करेक्ट। सो ये जो तीन प्रॉब्लम्स हैं, क्या, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, प्लीज लर्न दिस थिंग, ये सब चीजें आपको बहुत आगे हेल्प करेंगी, ठीक है। हाउ टू, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड हूम टू प्रोड्यूस, दिस
3 टॉपिक्स इट मेनली कम अंडर द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में। ये प्रॉब्लम जो है सो ये मेन सेंट्रल प्रॉब्लम है। मेन प्रॉब्लम तो सबसे पहले यही है कि भैया रिसोर्सेज एलोकेट कैसे करें, बताए कैसे। इसके अलावा देयर आर 2 मोर सेंट्रल प्रॉब्लम्स व्हिच इज which we study in our advanced micro. Let me tell you those 2 topics. उसका है fuller and efficient utilization of resources. Apart from these things, allocation of resources के अलावा एक और प्रॉब्लम है that is fuller and efficient utilization of resources. मतलब अच्छे से पूरा utilization हो resources का, ये वो जो कि we नहीं पढ़ेंगे, which is not required. This is mainly for advanced. I'm just studying for knowledge. Knowledge के लिए बता रही हूँ. Last इसमें तीसरा एक और सेंट्रल प्रॉब्लम है that is the growth of resources. This is also you don't have to study. This is again in the advanced. You don't have to be aware of this thing. हमारे लिए सिर्फ important अभी है allocation of resources में what to produce, how to produce and for whom to produce. Now let me explain you what is what to produce. So we have explained central problems that is the allocation of resources. इसके अंदर आता है. So अब मैं एक-एक टॉपिक को explain करूंगी. That is what to produce. Hold on, have patience. We are just one topic left. I know you're getting very patient for her. कोई बात नहीं, बस एक टॉपिक बचा है and then we are done with it. Okay? Just hold on yourself. जल्दी जल्दी खत्म करियो. What to produce? अभी मैं बात करी हूँ, क्वेश्चन आता है what to produce क्या होता है? What to produce मतलब क्या प्रोड्यूस करें? Correct? What to produce? So basically we have to take a decision, selection of goods that we need to produce. सिर्फ goods select नहीं करना, how much to produce. ठीक है? कि भाई रिसोर्सेज को वेस्ट तो नहीं कर सकते ना, वी हैव टू डिसाइड. तो बेसिकली व्हाट टू प्रोड्यूस किसके लिए डील करता है, दैट इज द सिलेक्शन ऑफ गुड्स दैट वी नीड टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस ऑफ दैट सिलेक्टेड गुड्स. कितना मैं प्रोड्यूस करूं, कंज्यूमर गुड्स. So basically it has to make a decision regarding consumer good versus capital goods, civil good versus war goods. ठीक है, so इसको डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी व्हाट टू प्रोड्यूस में कि मैं क्या प्रोड्यूस करूं. तो ये व्हाट टू प्रोड्यूस जो है वो रिलेटेड है सिलेक्शन ऑफ गुड के साथ. सिलेक्शन ऑफ गुड्स कि मैं सिलेक्शन का गुड्स का करना एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव हाउ टू प्रोड्यूस. ठीक है, कोशिश यही करेगा यहाँ पे, इस गाइडिंग प्रिंसिपल इज टू गेट अ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेना हाउ टू प्रोड्यूस में, व्हाट टू प्रोड्यूस में. हाउ टू प्रोड्यूस की अगर मैं बात करती हूँ, सो हाउ टू प्रोड्यूस बेसिकली फोकस ऑन टर्म से क्लियर हो रहा है कैसे प्रोड्यूस करूं मैं, हाउ कैसे प्रोड्यूस करेंगे. तो बेसिकली हाउ टू प्रोड्यूस इट कम्स विद अ टेक्निक. अंडरस्टैंड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन. यहाँ पे मैं लिख रही हूँ टेक्निक. ठीक है, ओ I'm writing here. Okay, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन कि क्या टेक्निक में लगाऊं. तो 2 ही टेक्निक होती है, एक होता है कैपिटल इंटेंसिव और एक होती है लेबर इंटेंसिव. मतलब क्या है इसका, ठीक है, कैपिटल मतलब और लेबर मतलब लेबर लगेगी. कैपिटल मतलब प्रोड्यूस करने का 2 ही तरीके हैं, इधर विद मशीन, ठीक है, या फिर लेबर के थ्रू. 2 ही तरीके से काम हो सकता है, या तो मशीन करेगी या लेबर करेगी. ठीक है, तो हाउ टू प्रोड्यूस टेक्निक. सो बेसिकली हमें ये डिसीजन मेकिंग का करना पड़ता है कि क्या मैं कॉम्बिनेशन ऑफ इन. बिफोर दिस थिंग एक चीज में सबसे इंपॉर्टेंट बताना तो भूल ही गई. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एक टर्म होता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. आई फॉरगॉट टू टेल यू, ये बिगनिंग में बता देना चाहिए था मुझे, बट मुझे एकदम से याद आ गया. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इसको मैं एफओपी लिखूंगी नेक्स्ट क्लासेस से, याद रखना. आई एम नॉट गोइंग टू राइट दिस होल सेंटेंस इन अगेन. एफओपी, ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. क्या टर्म से क्लियर हो रहा है, प्रोडक्शन करने के लिए क्या क्या फैक्टर रिक्वायर्ड है. लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए एंड द पर्सन हु नीड्स टू डू दिस थिंग्स, दैट इज एंटरप्रेन्योर. ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, 4 लोग याद रखना. लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. ये नहीं पता अगर बीइंग इकोनॉमिक्स स्टूडेंट तो कुछ नहीं पता है, ये तो रट लेना चाहिए. in being economics or in general you have to be aware of this things कि ये किसी भी चीज को, कुछ भी प्रोडक्शन, एनीथिंग, कुछ भी स्टार्ट करने के लिए ये 4 चीजें होना बहुत जरूरी है. लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. लैंड होगी, जमीन होगी, तभी तो आप शुरू कर पाओगे. लेबर होगा तभी तो वो इंसान काम करेगा. ह्यूमन रिसोर्सेज वेरी इंपॉर्टेंट एज आई सेड. कैपिटल पैसा होगा तभी तो आप लगाओगे. एंटरप्रेन्योर मेन ओनर हु इज गोइंग टू डू ऑल ऑफ दीस थिंग्स, वो काम करेगा, तो वो बहुत जरूरी है. ठीक है, तो डू नॉट फॉरगेट दिस थिंग्स, एफओपी, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. ठीक है, अभी मैंने स्टार्ट करना. ठीक है, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन.
प्रोडक्शन, सो आई सेड कैसे प्रोड्यूस करेंगे, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन करने की क्या टेक्निक होगी. सो मैंने एक बताया आपका लेबर, एक कैपिटल इंटेंसिव, और एक मैंने बताई आपकी, oh God, how will I write these things? ठीक है, टेक्निक मैंने लिखा है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, एंड LIT इज बेसिकली लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स. एक्सप्लेन कर दे रही हूँ. कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का मतलब है कैपिटल विच मींस ज्यादा मशीन्स यूज करना, लेबर इंटेंसिव का मतलब है लेबर ज्यादा यूज करना. ठीक है, तो हमारा डिसीजन मेकिंग ये होगा कि वी हैव टू यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज फैक्टर्स इन सच अ वे. मैं थोड़ा कैपिटल, थोड़ा मशीन से कर लूं, थोड़ा मैं ह्यूमन रिसोर्स कर लूं, थोड़ा मैं लेबर लगा लूं, ये भी तो बेटर कॉम्बिनेशन हो सकता है. ठीक है, या फिर मैं सिर्फ डिपेंड करेगा क्या प्रोडक्शन कर रही हूँ, डिपेंडिंग ऑन दिस थिंग. ठीक है, जो मूवली पैकेजिंग अप टू यू नो आल्सो डन विद द मशीन्स, और डिपेंड करेगा कि मैं लेबर क्या लगा रही हूँ, एंड एट द सेम टाइम इट आल्सो डिपेंड अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द फैक्टर्स. मेरे पास उस समय क्या अवेलेबल है वो भी डिपेंड करेगा. एंड सी आई एम गिविंग यू 2-3 एग्जांपल्स हियर. सी, अगर फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया वी आर लेबर इंटेंसिव. ठीक है, यहाँ पे लेबर इंटेंसिव, हम लेबर ह्यूमन रिसोर्स पे ज्यादा प्रेफर करते हैं. एंड अ कंट्री लाइक US इट फोकस मोर ऑन द मशीन्स. ठीक है, सो कंट्री टू कंट्री एक तो वैरी करेगी, और दूसरी चीज एट द सेम टाइम इस लेबर को कितना प्राइस मिल रहा है, कितना प्राइस उसको मिल रहा है, वो भी तो एक डिसीजन मेकिंग फैक्टर होगा कि नहीं. दूसरी चीज कैपिटल मशीन कितनी प्राइस क्या है, दैट विल आल्सो बी अ डिसीजन मेकिंग फैक्टर. तो मुझे इस तरीके का कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर लेना है किसी भी कंट्री के लिए. सो आई हैव टू टेक अ डिसीजन मेकिंग फैक्टर. मुझे ऐसा डिसीजन मेकिंग करना है कि उस कंट्री की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंप्रूव हो. देखो, अगर ह्यूमन रिसोर्स एम्प्लॉयड होंगे तो भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा कि नहीं, अगर मशीन बेटर होंगी, एडवांस होंगी, तो भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा कि नहीं. तो बेसिकली हमें कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स इस तरीके से लेना है कि वी हैव टू कीप दैट टारगेट कि हमको क्या चाहिए, एंड ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन दी क्या फैक्टर्स किस प्राइस पे अवेलेबल है. ठीक है, वो हमें देखना पड़ेगा. सो दिस इज हाउ वी टेक. फॉर एग्जांपल, टेक्सटाइल प्रोडक्शन जब आप कर रहे हो, इट कैन ऑल्सो बी डन विद मशीन से भी किया जा सकता है, लेबर से भी किया जा सकता है. इफ यू आर टेकिंग, सो इट डिपेंड्स कि इफ यू आर टेकिंग मोर लेबर और लेस कैपिटल मतलब है मशीन्स. ठीक है, और वी आर टेकिंग लेस लेबर, ऐसा सॉरी, मोर लेबर और लेस कैपिटल, क्या दिस थिंग वाइस वर्सा बेसिकली, यू नो, यहाँ पे. सो दैट्स व्हाट वी हैव टू मेक अ डिसीजन. तो हमारा गाइडिंग प्रिंसिपल इसमें क्या होना चाहिए, मैक्सिमम प्रोडक्शन हो, हमारा मैक्सिमम प्रोडक्शन हो, minimum cost पे हो. Listen this very carefully. I said how to production में we have to take a decision like this, that we need to have a maximum production at minimum cost पर हो, using the least scarce resources possible. जितना हो सके कम से कम resources को utilize करके ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो कम से कम कॉस्ट पे. नेक्स्ट वी हैव फॉर होम टू प्रोड्यूस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. इसमें भी 2 टर्म है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ. आई एम टेलिंग यू दैट इज पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, और यहाँ लिख रही हूँ फंक्शनल. समथिंग एल्स हियर. ठीक है, वो सो इट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम द होम टू प्रोड्यूस. दैट इज, ये 2 टर्म लिखे हैं. दिस इज पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड दिस इज फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन. आई टेल यू व्हाट इट इज. अब नेक्स्ट आता है कि होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए. ठीक है, कौन करेगा, फूड. Now the question comes is case, see, I tell you the definition. If a whom to produce, which means selection of the category of the people. ठीक है, कौन लोग करेंगे selection of those category of the people who will ultimately consume the goods. जो ultimately इस goods को consume करेंगे, कौन वो लोग होंगे जो इसको consume करेंगे. Selection of those category of the people who will ultimately consume the goods. Either it is rich or poor. या तो वो ज्यादा गरीब होंगे या ज्यादा वो अमीर होंगे. ठीक है, या कम अमीर होंगे या ज्यादा गरीब होंगे. सिलेक्शन दी कैटेगरी ऑफ द पीपल जो ज्यादा कंज्यूम करेंगे. ठीक है, लग्जरी आइटम्स होगा, रिच के लिए ज्यादा होगा. अगर नेसेसिटी आइटम होगा तो पुअर के लिए होगा. ठीक है, दैट्स व्हाट ही सेज कि हमें किसके लिए प्रोड्यूस करना है. सी अगेन, अभी सिर्फ यहाँ खत्म नहीं हुआ है टॉपिक. सिंस फर्स्ट थिंग आई सेड सिलेक्शन कैटेगरी ऑफ द पीपल whom to produce. तो हम सीख रहे हैं किसके लिए प्रोड्यूस करें, तो वो कैटेगरी ऑफ द पीपल, रिच के लिए या पुअर के लिए, पहली चीज. दूसरी चीज, यहाँ पे हम एक चीज और करनी है, किसके लिए प्रोड्यूस करें. इट डिपेंड्स अपॉन दी पेइंग कैपेसिटी, इट डिपेंड्स अपॉन दी इनकम. ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द पीपल. हम उनके लिए तो प्रोड्यूस करेंगे कोई भी गुड्स या प्रोडक्शन, व्हाटएवर वी हैव, दोज हु हैव द पेइंग कैपेसिटी, जिसको पे करने की कैपेसिटी रखता हो. पेइंग कैपेसिटी किस पे डिपेंड करेगी, इट डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ
income पे national income क्या है? So can I say that what whom to produce also deals with the problem of distribution of national income? Can I say that कि whom to produce जो है national problem की किस तरह से distribution? What I said, the one who has a paying capacity depends upon the national income. So can I say that it also deals with the distribution of national income के साथ deal करती है. So basically what is given here is okay. So basically economic problem whom to produce it also deals with the problem of distribution of national income. National income पर भी ये deal करता है. ठीक है. Now the national income पैसे it is also divided into these two portion में. एक होता है personal distribution और एक होता है functional distribution. अब क्वेश्चन आता है पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है. टर्म से बहुत ज्यादा क्लियर है. सो बेसिकली इट डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम. सो वी हैव टू कॉन्सेप्ट फॉर दैट, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन. दो पार्ट में डिवाइडेड है ये. एक होता है पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन होना और एक होता है फंक्शनल. टर्म से क्लियर हो रहा है. पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, व्हाट डू यू मीन बाय दिस थिंग? पर्सनल अभी मैंने बताया वापस से, पर्सनल मतलब हम लोग इंडिविजुअल लोग ना, इंडिविजुअल लोगों की बात करें. अभी एक ही चीज मैंने बताई थी, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. रिमेंबर दिस थिंग्स. अभी देखो, लैंड कौन ओन करेगा? लेबर, कैपिटल. अभी मुझे बताओ, यहाँ पे लेबर जो होगी, लेबरर जो है काम करने वाली, मेन जो है वर्कर है वही तो ओन करे, काम करने वाले वही वर्कर ही तो ओन करेंगे, जो फैक्टर है. सो यहाँ पे इंडिविजुअल कौन हो गया? वर्कर हो गया. लैंड को, कैपिटल को कौन ओन करेगा? एंटरप्रेन्योर. So, यहाँ से अब आपको याद रखना है कि who will going to own this thing, कौन इंडिविजुअल बनेगी. पर्सनल बात कर रही हूँ. तो यहाँ पे मैं बोलूंगी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम अमंग द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल. नेशनल इनकम को मैं कैसे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करूंगी, दैट टॉक्स अबाउट दी पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, उसके बारे में बात करूंगी. जब मैं बात करूंगी फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन की, तब लिसन दिस स्टेटमेंट वेरी केयरफुली. फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन व्हिच मींस डिसाइडिंग the share of each factor of production in the total national product of the country. क्या बोला मैंने? वापस से listen to same. Functional distribution क्या होगा? Functional का मतलब है deciding the share. एक national product में जो भी तैयार किया जा रहा है उसमें इस factor